ये सब क्यों आप लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, बिकॉज ऑर्डर पढ़ते नहीं। प्रैक्टिस ऐसा रखिए ना, प्रैक्टिस ऐसा रखिए कि जो आपका हैबिट हो जाए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। समटाइम्स यू विल हैव टू वर्क योरसेल्फ। जैसे जैसे आप बिजी होते जाइएगा, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसके हर चीज को जानिए। कितने लॉयर्स अभी आ रहे हैं हाई कोर्ट में जो एक डायरी में नोट करते हैं कि कौन से पिटीशन, कौन सी एफिडेविट पर कितने का स्टाम्प लगाना चाहिए। कोई नहीं करता। और हम लोगों को सिखाया गया था ये चीज। देखिए ये सब जितने अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम कोई नेशनल लॉ स्कूल से है, कोई दीज आर वेरी पिटी काइंड ऑफ मैटर्स। सम ऑफ देम विल थिंक अरे ये तो मुंशी का काम है, हमें क्यों बता रहे हैं। जो लाइन में आपको बोलना चाह रहा हूँ, फॉर ऑल, पार्टिकुलरली द बॉयज and girls who are sitting there as trainees. So have you filed any counter affidavit after 1511? Not thereafter, Your Lordship. Then you have not sought even instruction. As per the last Your Lordship, this matter was. Mr. Das, do you have a copy of the order in your hand? No, You belong to the same class of lawyers who do not keep the order sheet in the file. I am trying to inculcate this habit. Your Lordship, unfortunately, in this. I am trying to inculcate this habit in the lawyers of this court, but nobody is ready to accept it. Your Lordship, normally, Your Lordship, in every matter I take an order, but unfortunately. You have to. It is unfortunately, it is unfortunate because you do not inculcate that habit in yourself. The moment you start doing it, there is no reason why you will not keep the orders. I apologize, Your Lordship. Then how can I refer the orders? This is the position. Nobody keeps the order in the file. पढ़ करके बताइए, आप पढ़िए 15/11/2022 का ऑर्डर. It seems that you are not even aware of the order. You do not remember what is written there. यहाँ पढ़िए ना. 22. Defects are to be removed. Yes. How much time? Your Lordship, I was referring to. Have you read the order? Yes, I have read the order, Your Lordship. Did you seek instruction? Did you seek instruction? Instruction has been sought, Your Lordship, but actually this matter is. File affidavit. I will file, Your Lordship. That is the judicial order of the court. Most definitely. File order. And Your Lordship, this matter as per this order was supposed to be listed on 9th. So therefore, I am just saying that. 9th of 9th of January. 2023. This case after service of notice on respondent number 10 and 11. After service of notice. Or on 9. Or because notice has not been duly served, or it has been served upon by affixing it on the door. So office has placed it. And it is, or whichever is earlier. Earlier. और यहाँ दिया हुआ भी. In my all the orders, ये सब क्यों आप लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, बिकॉज ऑर्डर पढ़ते नहीं. आप ऑर्डर अगर रखना शुरू कीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा. I accept in this case this has not been done. Normally, Your Lordship, my practice is I always take the order as and when it is क्या uploaded. फायदा जब वो प्रैक्टिस आप रखते हैं और आज फेल कर गए उसमें. प्रैक्टिस ऐसा रखिए ना, प्रैक्टिस ऐसा रखिए कि जो आपका हैबिट हो जाए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. हुजूर, accepted हुजूर. प्रैक्टिस वैसा अपने अंदर बना दीजिए कि उसके बिना आप चल ही नहीं सकते. Absolutely, Your Lordship. जूनियर्स को कहिए कि कोई भी रिकॉर्ड हमारे सामने प्लेस नहीं करोगे I didn't want to say that, Your Lordship, but without order sheets. I didn't want to say that, Your Lordship. Sometimes you will have to work yourself. जैसे जैसे आप बिजी होते जाइएगा, जी. तो अगर सब कुछ, एक बड़ी पुरानी बात है, कुछ बातें मुझे याद आ जाती हैं कि कुछ चीजें जो है किसी भी हालात में स्वयं करना चाहिए. तो अपना काम जो है वो उसमें एक है, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसके हर चीज को जानिए. और किसी दिन मुंशी नहीं आया अगर, और कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना है, तो क्या कीजिएगा? आपको पता ही नहीं है कहाँ एफिडेविट होगा. नहीं, वो पता है. वो पता है. We have learned it from that stage, Your Honor. आपको पता होना चाहिए कि कितने का. अच्छा ये बताइए, ठीक है, इसको इन लाइटर वे नहीं हम लोग डिस्कस करें. कितने लॉयर्स अभी आ रहे हैं हाई कोर्ट में जो एक डायरी में नोट करते हैं कि कौन से पिटीशन, कौन सी एफिडेविट पर कितने का स्टाम्प लगाना चाहिए? कोई नहीं करता.
नहीं करते हैं ना, नहीं करते। करने का तो छोड़िए, वो जो nobody knows even. नोबडी नोज। और हम लोगों को सिखाया गया था ये चीज, कितने का वेलफेयर स्टाम्प लगेगा, एफिडेविट पर कितने का स्टाम्प लगेगा। ये इसलिए सिखाया गया था कि हमें सिखाने वाले जो लोग थे, दे केम फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल। I am one of the last maybe the persons who have inculcated those things from the old school. आज के डेट में जो बोला जाता है नोट old करके रखना पड़ता था कि घोषवारा है तो कितना का टिकट लगेगा जी ना। जी आप फोलियो दे रहे हैं, देखिए ये सब जितने अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम कोई नेशनल लॉ स्कूल से हैं, कोई दीज आर वेरी पेटी काइंड ऑफ मैटर्स। सम ऑफ देम विल थिंक अरे ये तो मुंशी का काम है, हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन जो लाइन मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, फॉर ऑल पार्टिकुलरली द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर सिटिंग देयर एज ट्रेनीज, खेती पाती विनती और घोड़े के तन तीनों आप ही कीजिए, लाख रहे कोई संग। बहुत सही है। खेती पाती मतलब व्यवसाय अपना, तो आपका व्यवसाय है वकालत। विनती, अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, तो ये नहीं कि अच्छा वैष्णो देवी जा रहे हैं, जरा 10 रुपए मेरे लिए भी लेते जाइए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, वो नहीं। आप कहीं भी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वहां जाकर के पूजा करना है। कहीं भी हैं, स्वयं पूजा कर रहे हैं, हो गया पूजा। और घोड़े के तन, घोड़े का तन का मतलब क्या हुआ? पहले के जमाने में लोग घोड़े पर चढ़ते थे, सवारी होती थी। आज कोई स्कूटर चढ़ता है, कोई गाड़ी चढ़ता है। अब गाड़ी आप चलाए जा रहे हैं और एकदम सुनसान इलाके में मालूम हुआ हेडलाइट बंद हो गया। अब वो हेडलाइट बंद हो गया, फ्यूज उड़ गया उसका, वो आपको पता ही नहीं है। गाड़ी तो लिख लिया आप 20 लाख रुपए का, पता ही नहीं है कि इसका फ्यूज कहां पर। एक एक्स्ट्रा फ्यूज लेकर के आप नहीं रखे हुए हैं उसमें। जी उसके लिए तो हुजूर पता होना चाहिए कि फ्यूज भी है। तो हम लोग स्कूटर वगैरह जब चढ़ते थे, 2 पहिया गाड़ी, तो ये पता होता था कि अच्छा ठीक है ये प्लग में कार्बन आ गया, तो उसको खोले, अपने से खोल करके और प्लग को निकाला और उसको कागज लगा करके साफ करके और फिर उसको देख लिया ऊपर से कि करंट पास कर रहा है कि नहीं, थोड़ा किक मार करके। तो वो जमाना था जब सिखाया जाता था। अब क्या है कि वो सब चीजें भूल रहे हैं। ये सब चीजें स्वयं करना चाहिए, चाहे कितना भी व्यक्ति आपके साथ हो जाए। Agreed. ठीक है, Absolutely. तो ये इतनी बात इसलिए हुई कि कम से कम आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट में जो भी ब्रीफ के साथ आ रहे हैं, कंप्लीट ऑर्डर। ये तो हम कहते कहते थक गए हैं बार में। ये प्रैक्टिस हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केसेस में जाने का मौका मिलता था, और वहाँ वो हैबिट हमने देखा लॉयर्स में कि दे वर मेंटेनिंग दी ऑर्डर शीट्स। एक तरफ फाइल में जो है ना सारे ऑर्डर शीट्स लगा करके रखते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था, तो वो हमने शुरू किया था। और यहाँ तो कहते करते थक जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए उसको कीजिए, आप लोगों से ज्यादा Absolutely, Your Honor. experience। And I apologize for the same. नहीं ठीक है, अपोलोजाइज करने का जरूरत नहीं है। 1 वीक आफ्टर एक्समस बस हॉलीडेज। पहले जो प्रेयर है जो उसको पाठ हट कर लिया जाए, हो सकता है कहीं बेंच चेंज हो जाए। नहीं वो नहीं ये मत कीजिए नरेंद्र बाबू। देखिए बेंच सब एक ही होता है, बेंच जो है ना, बेंच सब एक ही होता है। कहीं भी आएगा तो आपको न्याय मिलेगा, ऐसा क्या है? नहीं, मैंने चाहते हैं कि न्याय यहीं से हो जाए। अब ऐसा तो मेरे चॉइस में नहीं है। पाठ I हट कर will दिया be, जाए जो- I will be, इसको पाठ हट कर दिया I should not attach myself with any brief. और my कोई submission मॉनिटरिंग की before- जरूरत होती है तो उसको हम लोग देखते हैं कि यार ठीक है, इसको हम इतने साल से मॉनिटर कर रहे हैं, या इसमें कोई ऐसी बात है जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको रखते हैं मॉनिटरिंग के लिए। वो अपने आप टाइड अप हो जाता है, या कहीं दूसरे बेंच में जाता भी है तो वो फिर वहां से रेफर होके आ जाता है। आप देखिए कई मैटर्स में जो मैटर लिस्ट हुआ है
दूसरे कोर्ट में भी, और उन्होंने ऑर्डर्स देखा, इतने सारे ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, तो भेज दिया विद द परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस। तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है, आने दीजिए।